Okay, find the sum of the AP. The AP is a minus b whole square, a square plus b square, a plus b whole square, dash dash dash, up to n terms. n terms का सम फाइंड करना है. तो यहां पे बच्चों स्मॉल ए चूंकि क्वेश्चन में यूज किया हुआ है, तो फॉर द फर्स्ट टर्म विल बी यूजिंग कैपिटल ए हियर. कैपिटल ए, दिस इज फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दिस इज ए माइनस बी होल स्क्वायर. इसको एक्सपैंड कर लीजिए. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. This is a. Common difference. a2 minus a1. Second term minus first term. Second term is a square plus b square minus first term is a square plus b square minus 2ab. So when you simplify this, you will only get 2ab. So difference is 2ab. Now we have to find out sum of n terms. तो Sn फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है n/2 2a plus n minus 1 into d. n/2 2a a की वैल्यू है a minus b whole square, और लेट्स राइट a square plus b square minus 2ab plus n minus 1 into d. d is 2ab. तो यहां से बच्चों ये देखिए 2 कॉमन आ रहा है. 2 कॉमन निकाल दें तो वी गेट n/2 into 2. There comes a square plus b square minus 2ab plus nab minus ab. So 2 cancel. The answer is n. Here it is a square plus b square minus 3ab plus NAB. This is the sum of n terms. Sum. Find the sum. Find the sum. 1 minus 1 by n plus 1 minus 2 by n plus 1 minus 3 by n dash 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 up to n terms. Again it is up to n terms. First term a is 1 minus 1 upon n. D. Second term 1 minus 2 upon n minus 1 minus 1 upon n. So when you simplify it, you will get minus 1 upon n. This is D. Now Sn n/2 2a plus n minus 1 into d. n/2. Let's simplify. 2 into 1 2 minus 2 upon n
n into minus 1 by n, that is minus 1, minus 1 into minus 1 by n, that is plus 1 upon n upon 2, 2 minus 1, 1, minus 2 by n plus 1 by n is minus 1 by n. Let's take the LCM here. N upon 2, n minus 1 upon n. N cancel. The answer is n minus 1 upon 2. The sum of first, third and 17th terms. Third and 17th terms of an AP is 216. Find the sum of first 13 terms. Find the sum of first 13 terms मतलब S13 फाइंड करना है बच्चों. ओके, अब पहले ये वाला स्टेटमेंट देखते हैं अपन. सम ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस third term plus 17th term is 216. फर्स्ट टर्म मतलब हो गया a, थर्ड टर्म मतलब हो गया a प्लस 2d, 17th टर्म मतलब हो गया a प्लस 16d equal to 216. A plus A plus A, 3A, 2D plus 16D, 18D equal to 216. Divide whole equation by 3. A plus 6D equal to 72. Okay. We have obtained A plus 6D is equal to 72. ये बनी हमारी फर्स्ट इक्वेशन. अब S13 फाइंड करना है. S13 तो फॉर्मूला लगाइए बच्चों. 13 अपॉन 2, 2A प्लस 13 माइनस 1, 12D, 2 कॉमन, 13 by 2 into 2, A plus 6D, 2 कैंसिल. अब देखिए A plus 6D की वैल्यू ऑलरेडी है आपके पास 72. तो यहां से फर्स्ट इक्वेशन से ये वैल्यू आपको पुट करना है यहां पे. सो हियर वी गेट 13 इंटू, फर्स्ट इक्वेशन में A plus 6D की वैल्यू 72 है. सो 13 इंटू 72. Just multiply. 13 2s are 26, 2 remainder, 13 7s are 91 plus 2 is 93, 936 is your answer. Question is, in an AP, sum of first 10 terms is minus 150. Sum of first 10 terms is minus 150 and sum of next 10 terms is minus 550. Find the AP. You have to find the AP. और AP फाइंड करने का मतलब है कि आपको A और D फाइंड करना है. फाइंड AP.
अब यहां पे देखिएगा बच्चों, S10 मतलब फर्स्ट टर्म से लेकर के 10th टर्म तक का सम दिया हुआ है -150, और नेक्स्ट 10 का मतलब है 10 के बाद जो 11th टर्म से लेकर के 20th टर्म तक का सम होगा, दैट इज -550। तो अब यहां से S10 इज इक्वल टू -150, यहां से आपकी एक इक्वेशन बन सकती है। लेट्स सी द सॉल्यूशन। S10 इज इक्वल टू -150। ओके, दूसरा, यदि हम ये दोनों को प्लस कर दें, sum of first 10 terms plus sum of next 10 terms, so this will be equal to -150 minus 550, that is -700। अब S10 देखिएगा यहां पे ध्यान से, S10 का मतलब हो गया A1 से स्टार्ट किया, A2 डैश 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 A10 तक के लिखा, और सम ऑफ नेक्स्ट 10 का मतलब है 11th टर्म से शुरू करेंगे और 20th टर्म तक लिखेंगे। दिस इज -700। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज सम ऑफ 20 टर्म्स इज -700। ओके, इज इट क्लियर? ये स्टेप समझ में आ गई बच्चों? सम ऑफ फर्स्ट 10 प्लस सम ऑफ नेक्स्ट 10 जब ऐड करेंगे तो हमें कितने टर्म्स का सम मिल जाएगा? 10 प्लस 10 20 टर्म्स हो गए पूरे, तो ये 20 टर्म्स का सम हो गया -700। ओके, now we'll apply the formula। S10 is equal to -150 means 10 upon 2 2a plus 10 minus 1, that is 9d, equal to -150। 2 से कैंसिल किया 5 टाइम्स, इक्वेशन बनेगी 2a प्लस 9d इक्वल टू -30। ये बनी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, S20 is -700, so 20 upon 2 2a plus 19d equal to -700। 2 से इसको कैंसिल करो, 35 टाइम्स कैंसिल हो गया, 35 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो इक्वेशन बन रही है 2a प्लस 19d इक्वल टू -20। ये बनी सेकेंड इक्वेशन। Now we have to solve the two equations and get the values of a and d, and for that simply second equation में से first equation को माइनस कर दो, second माइनस फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे, 2a कैंसिल हो जाएगा, 19d माइनस 9d मतलब बचा 10d माइनस 20। ओह सॉरी, यस सॉरी, यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है, तो दिस इज -70। ओके, करेक्ट। तो सेकेंड माइनस फर्स्ट, 2a कैंसिल हो गया, 19d माइनस 9d दैट इज 10d बचा, -70 माइनस -30, -70 माइनस -30, so we get 10d equal to -40। that means d is equal to -4। d आ गया -4। d की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, या सेकंड में भी कर सकते हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, 2a minus 36 equal to -30, so 2a is equal to 6, a is equal to 3, a आ गया 3। अब आपको ap लिखना था,
AP will be, फर्स्ट टर्म है बच्चों 3, डिफरेंस -4 का है, 3 - 4 इज -1, -1 - 4 इज -5, -9 -13 डॉट 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 डॉट। जब भी आपसे एपी लिखने के लिए कहा जाए बच्चों, कम से कम 5 टर्म्स जरूर लिखेंगे, राइट, एटलीस्ट 5 टर्म्स, पुट अ डॉट 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 एंड दैट इज द फाइनल आंसर। ओके ओके, एक बार फिर देख लो बच्चों, यहां पे ये स्टेप समझ ले, सम ऑफ फर्स्ट 10 प्लस सम ऑफ नेक्स्ट 10। फर्स्ट 10 मतलब फर्स्ट टर्म से लेकर 10th टर्म तक, नेक्स्ट 10 मतलब 10th के बाद आया 11th टर्म, तो 11 से लेकर के 10 टर्म्स आपको लिखना था, तो 11 से 20 तक आएगा। और इन सबको हमने मिला दिया, तो फर्स्ट से लेकर 20 तक के टर्म्स लिखे, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है S20 को। सो S20 is -700, that means 20/2, 2a plus 20 - 1 is 19d equal to -700। 2 से कैंसिल किया, 10 टाइम्स हो गया, 10 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो -70 आ जाएगा। सो इक्वेशन इज 2a plus 19d is equal to -70, and then we have subtracted equation 2 and equation 1. The question is the sum of first 3 terms. Sum of first 3 terms is half the sum of next 3 terms. Half the sum of next 3 terms. If the first term is 6, first term is 6, find the common difference. Find common difference. मीन्स देखिए बच्चों क्या क्या दिया हुआ है, पहले तो ये देखना है आपको। सबसे पहले दिया है फर्स्ट टर्म इज 6, मीन्स a is equal to 6। कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, d we have to find out। अब देखिए सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म्स मतलब बच्चों हो गया फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म इज मतलब इक्वल टू हाफ, सो 1/2। सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स, थर्ड के बाद नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखना है आपको, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म। ओके, फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म a plus d, थर्ड टर्म a plus 2d, और ये 1/2 वाला 2 इधर ट्रांसपोज कर लें तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया। फोर्थ टर्म a plus 3d, फिफ्थ टर्म a plus 4d, सिक्स्थ टर्म a plus 5d। a plus a plus a, 3a into 2, this is 6a, plus 2d plus d is 3d, 3d into 2, again 6d, a plus a plus a, 3a, 3d plus 4d plus 5d, 12d। 3a इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, 6d इधर ट्रांसपोज कर लो, 6a
minus 3a equal to 12d minus 6d. Means 3a equal to 6d. Divide by 3, a is equal to 2d. अब a की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो मतलब हो गया 2d is equal to 6. So d is equal to 6 upon 2, that is 3. Right? Find the common difference. Find the common difference of an AP whose first term is 20. First term is 20. And sum of first six terms is 5 times the sum of next six terms. 5 times the sum of next six terms. 28. Okay, just similar to the previous question. पिछला क्वेश्चन किया था उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है. First term given is 20. Sum of first six terms S6 is equal to 5 times sum of next six terms. अब S6 का मतलब बच्चों A1, A2, A3 up to A6, 6 टर्म्स का सम. 5 टाइम्स सम ऑफ नेक्स्ट सिक्स. 7 से स्टार्ट होगा. A7, A8, A9, A10, A11, A12. Okay. Now A1, this is A. A2, A plus D. A3, A plus 2D. A4, A plus 3D. A5, A plus 4D. A6, A plus 5D equal to 5 times A plus 6D, A plus 7D, A plus 8D, A plus 9D, A plus 10D, A plus 11D. So this is A 6 times. 6A. D plus 2D 3D plus 3D 6D plus 4D 10D plus 5D 15D equal to 5 times. Again A 6 times, so this is 6A plus 6 plus 7 is 13 plus 8 is 21 plus 9 is 30 plus 10 is 40 plus 11 is 51. 51D. Right? Now let's put the value of A. A is already given 20. So 6 into 20 plus 15D equal to 5 into 6 into 20 plus 51D.
can simplify this now. 120 plus 15d equal to 30 into 2 6600 plus 5 into 51 is 255d. 15d minus 255d is equal to 600 minus 120 minus 240d equal to 480. Therefore d is equal to minus 2. ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा बच्चों. नेक्स्ट 6 का मतलब जहां पे खत्म किया था उसके बाद आगे आपको स्टार्ट करना है. Find the sum of all 3-digit numbers each of which leave the remainder 3. Each of which leave remainder 3 when divided by 5. मतलब 3-digit नंबर्स वो लेना है जिसको जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 बचना चाहिए. इसका मतलब ये है कि आप 3-digit नंबर जो है, जो 5 का मल्टीपल है, सबसे छोटा नंबर, उसमें आप 3 ऐड कर दें. तो सबसे पहला नंबर 3-digit नंबर डिविजिबल बाय 5, दैट इज 100. लीव्स द रिमाइंडर 3, इसलिए 3 प्लस कर दीजिए. तो फर्स्ट नंबर विल बी 103. AP will be 103 is the first number. नेक्स्ट नंबर 5 प्लस कर दें तो 108 आएगा. नेक्स्ट नंबर विल बी प्लस 5 अगेन, सो 113 डॉट डॉट डॉट, एंड द लास्ट नंबर विल बी 998. That is 995 plus 3, which is 998. Now here we already have A is equal to 103, D is equal to 5. आपको सबसे पहले n फाइंड करना होगा. an दिया हुआ है आपको, an is 998. First we need to find out the value of n. So n फाइंड करने के लिए an का फॉर्मूला लगा दीजिए. a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 998. a is 103, इधर ट्रांसपोज करेंगे. n माइनस 1 इंटू 5 is equal to 998 minus 103, which is equal to 895. Therefore n minus 1 is 895 divided by 5. So 5 ones are 5, 5 nines are 45, again 4 remainder, 5 ones are 5, 3 remainder 39, so 5 sevens are 35, 4 remainder 9s are 179. Therefore n is equal to 179 plus 1, that is 180. अब n आ गया 180. अब आपको Sn निकालना था. Sn, that is S180. तो फॉर्मूला लगा दें. n by 2 a plus l, n upon 2 a is 103 plus an is 998. So 90 times cancelled here, multiplied by 8 plus 3 11, 9 plus 1 10,
9 plus 1 10 plus 1 11. Multiply this. 9 ones are 90990. So 99,090 is the sum of first three digit numbers, which leaves the remainder 3 when divided by 5. Question is, all natural numbers amongst first 1000 numbers. All natural numbers amongst first 1000 numbers, which are neither divisible by 2 nor by 5. Neither divisible by 2 nor by 5. I will just give the hint for this question. You can solve it yourself then. That is, question is, sum of all natural numbers, sum of all natural numbers amongst first 1000 numbers. Amongst मतलब फर्स्ट एंड लास्ट भी इंक्लूड होगा इसमें. फर्स्ट 1000 numbers neither divisible by 2 nor by 5. Neither divisible by 2 nor by 5. अब इसमें आपको क्या करना है बच्चों? सबसे पहले इसका मतलब देख लो कि ऐसे नंबर्स का सम निकालना है जो कि ना 2 से डिवाइड हो ना 5 से डिवाइड हो, और 1 से 1000 तक के नंबर्स लेना है. इसका मतलब यदि आप देखें तो सीरीज जो आप लिखेंगे जिसका आपको सम निकालना है, दैट इज 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 plus 19 plus dash dash dash, and the last number will be 999. ओके, अब यहां पे देखो, यदि आप सीरीज देखते हैं तो 1 और 3 का डिफरेंस 2 है, फिर 4 का आ गया, फिर 2 का आ गया, फिर 4 का आ गया, मतलब यहां पर आपकी एपी नहीं बन रही है. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन सेपरेट द टू सीरीज. ठीक है, तो यहां पर आप देखिएगा कौन से नंबर्स मिसिंग है, पहले ये देख लें. ठीक है, तो आप ये देखें कि कौन से नंबर्स मिसिंग है, पहले उसका सम निकालेंगे. तो मिसिंग नंबर्स यदि आप देखते हैं, सो टू फाइंड आउट, सॉल्व दिस क्वेश्चन, first we'll find out sum of all 1000 numbers. ठीक है, पहले 1000 नंबर्स का सम निकालिए, मतलब आपको 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 1000 फाइंड करना है. ठीक है, तो सबसे पहले आपको सम ऑफ फर्स्ट 1000 नंबर्स निकालना है. उसके बाद आपको दूसरी एपी बनाना है, सम ऑफ all numbers between from 1 to 1000, 1 to 1000 divisible by 2, मतलब सारे इवन नंबर्स का सम निकालिए. फिर आप निकालेंगे सम ऑफ ऑल नंबर्स from 1 to 1000 divisible by 5. Then we'll find out sum of all numbers from 1 to 1000 divisible by 10. 2 and 5 both.
अब now we'll find out sum of all numbers from 1 to 1000 divisible by either 2 और 5 जैसा पिछले क्वेश्चन में किया। तो सपोज इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं, यहां पे फर्स्ट वाला मैं कैपिटल एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसको सपोज मैंने लिखा S1, ये हो गया S2 और ये हो गया S3। तो दिस विल बी इक्वल टू S1 प्लस S2 माइनस S3। ठीक है, सपोज दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय S, छोटा s लिख लेते हैं S, राइट। नाउ सम ऑफ नंबर्स not divisible, neither divisible by 2 nor by 5, it will be the sum of all natural numbers। इसमें से वो नंबर्स माइनस का सम माइनस कर दें जो 2 और 5 से डिवाइड होते हैं, सो दैट इज S माइनस S। ओके, समझ आया?